गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6th। The wonder called sleep. We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. Sleep is a state of rest, an unconscious rest. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हमें जो नींद होती है, हम नहीं जानते कि ये नींद किस कारण आती है। नींद जो है एक तरह का रेस्ट है, जो कि हमें एक आरामदायक स्थिति देता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम अपने शरीर में जो हमने दिन भर एक्टिविटीज़ की हैं, जो हम थक गए हैं, उससे नींद पूरी करके हम उसके बाद बिल्कुल चुस्त हो जाते हैं, अगले दिन के कामों के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम जागते हैं तो हमें सदा याद नहीं रहता कि हमने रात को क्या सपने में देखा था, हमें सिर्फ एक आधा सपना ही याद रहता है। Several things happen to our body while we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. Our heartbeat becomes slower. Our temperature and blood pressure go down. The ever active brain also slow down so that we cannot think or act consciously, but we dream. When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. Our heartbeat and breathing also become normal, and we are truly awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. जब हम सो रहे होते हैं तो क्या होता है कि चीज़ें हमारे शरीर के साथ घटित होती जाती हैं। जैसे जैसे नींद हमारी गहरी होती जाती हैं, हमारी जो मसल्स होते हैं ये बिल्कुल रिलैक्स फील होते जाते हैं। हमारे जो दिल की धड़कन होती है वो धीमी पड़नी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर का टेम्परेचर जो हो जाता है स्लो हो जाता है। हमारा मतलब हम सक्रिय रहने वाला जो हमारा दिमाग है, जो हमेशा चलता रहता है तेज़ गति से, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इस कारण हमें उस टाइम हम जो भी मतलब हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ एक सपने देखते रहते हैं। और जब हम जाग जाते हैं तो हमारा जो ये हमारा ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब नॉर्मल हो जाता है। हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग सब नॉर्मल हो जाती है। और जब हम पूर्ण रूप से जाग जाते हैं तो हम सब कुछ नहीं भूलते, बल्कि हमें कुछ एक आध सपना याद रह जाता है और कुछ सपने हम भूल जाते हैं जो हमने नींद में देखे हों। What is a dream? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. Some dreams are probable while others are not. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake, other could not. Dream seems to be important for several reasons. One is that dream can help us sleep through noise or other disturbance. For example, disturbances. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. सपना क्या होता है? ये एक तरह से हमारे मानसिक जो दिमाग में हलचल होती है, एक नींद की अवस्था में चलती रहती है। बल्कि कुछ अपने सपने जो होते हैं वो संभव लगते हैं कि अन्य, और कुछ सपने असंभव से लगते हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि सपने में घटने वाली जो बातें हैं वो हमेशा जागृत अवस्था में घट सकती हैं, अन्य नहीं घट सकती हैं। सपनों का कई कारणों से बहुत इम्पोर्टेंस होती है। एक तो यह सपना हमें शोरगुल तथा अन्य विघ्नों के बावजूद निद्रामग्न रखता है। एग्जाम्पल के लिए, जब अलार्म को क्लॉक बजती है, हमें जगाने के लिए बजती है, तो हमारा दिमाग यह सपना देख लेता है कि फ़ोन या द्वार पर घंटी बज रही है, तो हम जैसे जागे हुए हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. But we must remember one thing: dreams cannot be used as a way to tell the future. They simply can never tell the future. Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? Many poets have written beautiful poems about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. कुछ डॉक्टरों ने ये पता लगाया है कि जो व्यक्ति है उसने काफ़ी मात्रा में बहुत सी समस्याओं को उजागर करते हैं। तो यदि उनका सही विश्लेषण किया जाए तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सॉल्यूशन भी वो दे सकते हैं। पर हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सपने कभी भी फ्यूचर की बात बताने में सहायक नहीं होते। वे भविष्य की जानकारी दे ही नहीं सकते। नींद जो होती है एक आम अनुभव है,
पर हम में से अनेक लोग जो हैं वो नींद के चमत्कार तथा उनकी शक्ति की बात नहीं सोचते हैं। बल्कि कविता में भी कवि नींद के अनुभव का वर्णन करता है, जैसे लाइट्स आउट है। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, द unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late. They cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. वो इसमें जो कवि है, पोइट है, वो बताता है कि मैं निद्रा की सीमा पर पहुंच गया हूँ, जो कि बहुत जैसे असीमित ऐसा गहरा जंगल जिसकी कभी सीमा खत्म ही नहीं हो रही है। उस जंगल में सभी लोग जो है रास्ता भूल जाते हैं, कितना भी सीधा या घुमावदार हो, शीघ्र हो या देर से, इससे बच निकलना उनकी मर्जी पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी ऐसी रोचक पुस्तक नहीं है अथवा कोई भी प्रिय व्यक्ति का ऐसा चेहरा नहीं है जिससे मैं मुंह मोड़कर उस अज्ञात लोक जहाँ नींद की दुनिया में न जाना चाहूँ। मुझे जाना ही पड़ता है। पता नहीं किस प्रकार से यह सब होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।